वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज 9 जनवरी का दिन है जी, शनिवार का दिन है। तो पलवल बॉर्डर के उपर खड़े हाँ, किसान आगू ने जिहड़े जां होर बुलारे आ वो अपनी भाषण दे रहे, गलबात कर रहे आ। सो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ कि जिहड़ी कल मीटिंग रही है किसानों की सरकार दे नाल वो भी बेसिट्टा रही है, कोई उस चों रिजल्ट नहीं निकलिया, पॉजिटिव कोई चीज़ जिहड़ी सामने नहीं आई। पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि कुछ दिन पहला पलवल बॉर्डर की जिहड़ी कवरिंग तुहानूं दिखाई सी, उस तरह ही अज भी काफ़ी दिन बाद जिहड़े किसान ने उस तरह ही इत्थे डटे हुए, उस तरह ही बैठे आ, उन्नी ही शांति नाल उन्नी ही सहज दे नाल बैठ के गलबात सुन रहे, भाषण सुन रहे, नेतावां दा जां माफ करना किसान आगुआं दा। सो असी होर भी जिहड़ियां तस्वीरां ने इस पलवल बॉर्डर दियां तुहानूं दिखाउने जी। संगत जी हुणे हुणे तुसीं एक फोटो देखी, फुल्लां दा हार पाया होया है, आपां कह सकते हैं कोई 55-60 साल के आस पास उन्हां दी उम्र होएगी। सो ये फोटो है जी सुरिंदर सिंह दी, जिहड़े ग्वालियर जिला दे रहण वाले आ। ते शुरुआती समय दे विच इस मोर्चे दे विच इन्हां ने शहीदी प्राप्त कीती है। ये साडे नाल वीर खड़े होए आ, ये उन्हां दे नाल रहे आ, उन्हां दे नाल काफ़ी विचरे आ। सो इन्हां तो आपां जाणांगे कि किवें किवें सब हादसा वापरिया ते ये जिहड़ा सारा इंसीडेंट है वो किवें होया। वीर जी मेरा नाम मलविंदर सिंह आ, मैं ग्वालियर जिले तो आया है। मेरी तहसील चिनौर आ और मेरे चिनौर पिंड दे 2 सांसद रह चुके ने और ये ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਰਸੋਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਬਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰੜੇ 'ਚ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਿਕਟ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MP ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਲਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਘਾਟ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਸਤੇ। एडा मुੱਢ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। सो संगत जी माहौल बड़ा ही भावुक हो गया इस समय। आप सच्ची मतलब कोई लफ्ज़ नहीं रहिंदा। वीर आप देख सकते हैं किस तरह भावुक होए। आप समझ सकते कितना ज़्यादा इन्होंने शुरुआती समय च संघर्ष किया, क्योंकि मोर्चे चल रहे मोर्चे दे विच आके हाज़री भरनी ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ बैठ के वापस चले जाना बहुत सौखा हुंदा। पर ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मजदूर किसान इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। मजदूर किसान इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली।
हैराना है दिल्ली मजदूर किसान इकट्ठे हो गए जाना है दिल्ली रेलवे की सरकार बनी है ना है आटे में रेलवे की सरकार बनी है ना है आटे में नौकर का लेती लिए किए छपड़े छापे में अभी इनको जाकर अच्छा सबक सिखाना है दिल्ली मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ जाना है दिल्ली बेदर्दी सरकार न समझे दर्द किसानों का बेदर्दी सरकार न समझे दर्द किसानों का फर्क नहीं पड़ता इस पे भारे उल्हानों का इनकी भाषा में इनको अब समझाना है दिल्ली और मजबूर किसानों इकट्ठे हो जाओ जाना है दिल्ली सड़कों पर धक्के खा राजगीर किसान है सड़कों पर धक्के खा राजगीर किसान है आतंकवादी बतला रहा हमें वो प्रधान है आतंकवादी बतला रहा हमें वो प्रधान है कभी नकली कहे किसान हमें बतलाना है दिल्ली मजबूर किसानों इकट्ठे हो जाओ जाना है दिल्ली गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली आंदोलन की कुर्बानी वृथा ना जाएगी आंदोलन की कुर्बानी वृथा ना जाएगी या तो दिल वापस ले ले दिल्ली पछताएगी या तो दिल वापस ले ले दिल्ली पछताएगी और धड़क पार कह देवी सिंह हमें गाना है दिल्ली मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ जाना है दिल्ली गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली हो पीएम मोदी तू कान खोल कर सुन ले अपने गिरदे में धर ले मत हार तू किसान से मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से ओ पीएम मोदी तू कान खोल कर सुन ले अपने गिरदे में धर ले मत हार तू किसान से मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से जब आपको हमने पीएम बनाया था तो हमने आपकी बड़ी सेवा करी थी आपको वोट दी थी और क्या हुआ हमने क्या बोला था क्या जनता कहती थी जब सुनिए और ये हरी हरी मोदी हरी हरी मोदी जनता ने ना राजिया हरी हरी मोदी हरी हरी मोदी जनता ने ना राजिया अड़ा ढूंढी तेरी वोट हटाई ताज तेरे शरीर धर दिया हमने तुमको कमल दिया था जनता से तूने वादा किया था 2 करोड़ में नौकरी दूंगा काले धन से घर भर दूंगा कोई वादा न पूरा
किया, कृषि कानून भी बंद कर दिया। कह लो तुम ईमान से, उलट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। और कबीर सिंह घोड़ी वाला, कबीर सिंह घोड़ी वाला, किसान क्रांति आएगी, प्रधानमंत्री किसान होगा, तब खेती लहराएगी, 24 घंटे बिजली होगी, फसल हमारी दुगनी होगी, आमदनी भी चौगुनी होगी, रिपोर्ट स्वामी नाथन लागू होगी। लेना पूछ आके किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। पीएम मोदी सुन पाते न सुन ले, पीएम मोदी तू काली खोल कर सुन ले, अपने हृदय में धर ले, बदल गए तू किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। मैं बालक राम तेवतिया, गांव जनौली, तहसील पलवल, जिला पलवल से हूं और पिछले 44 दिन से जो ये धरना चला हुआ है किसानों का, पूर्ण रूप से हमारा समर्थन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत सरकार से, यदि वास्तव में इस देश की इज्जत को बचाना चाहते हो, इसके मान सम्मान को बचाना चाहते हो, तो इस किसानों की इस मांगों को बहुत जल्दी पूरा करें, अन्यथा मोदी जी आप पछताओगे। इन किसानों से टकराओ मत। ये बहुत ही गंभीर हमारा विचार है, बहुत ही गंभीर आपसे निवेदन है। आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए, राजहट को छोड़ दीजिए, अन्यथा आप हमेशा के लिए पछताओगे। ये हमारे किसानों की एक आवाज है, आप इसको दबा नहीं सकते। अपने वहम को निकाल दीजिए। ये वो गुजरात नहीं है जहां अपने दंगे फैला करके अपने आप को वहां बहुत बड़े लाइट में आए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की भावनाओं को समझते हुए आप अपने इस विचार को छोड़ दीजिए और किसानों की मांगों को बहुत जल्दी मानिए। यही आपसे निवेदन है, अन्यथा आप पछताओगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਜਰਾਮ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई सवाल कराएंगे, कुछ गलबात कराएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप बताइए अपने विचार जो मोर्चे के बारे में, क्योंकि आप लगातार इस मोर्चे में हाजिरी भरते हैं, तो जो आपकी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक चीज को हम कैच करते हैं, वो संगत के सामने जरूर रखिए। देखिए, अभी जो परिस्थितियां जो निर्मित हुई है, ये जो खासकर जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए, जिसमें जो सरकार द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है, ये हमने किसानों को आज़ाद करने का कानून लाया है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा है कि किसान कब गुलाम है? किसान तो अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को C2 फार्मूले के आधार पर 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज का दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब जब वो कानून लाया है, जो कानून ये है कि ये पूरा कारपोरेट घरानों के हित में है, खेती को, किसानों को खत्म करने का है, कि खेती में जो रोजगार जो होता है उसको भी वो खत्म करने का एक कानून है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमारी अपने जो खाद्य की जो आत्मनिर्भरता है, खाद्यान्न पर हमारी जो पकड़ है, उसको खत्म करके वो कारपोरेटों के हाथ में देने का जो कानून है, जो सीधा सीधा ये बात है कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी खत्म करने वाली बात है। इसलिए आज ये दिखाता है, आज का ये आंदोलन दिखाता है कि यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, यह उन लोगों का भी आंदोलन है जो फुटपाथ पर सोने वाले जो लोग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जो कबाड़ी बीन कर रोजी मजदूरी करते हैं और अपना पेट चलाते हैं, उनके भी भोजन खत्म होने वाला है। यह भी दिखाता है जिन लोगों को नौकरी पेशे जो लोग हैं, उनको लगता था कि हम तो खेती नहीं करते, हम एक वेतन के ऊपर निर्भर हैं। तो ये जो कानून से
आज जो सस्ता जो उनको अनाज मिल रहा है, सस्ता में जो उनको भोजन मिल रहा है, वो भोजन की थाली उनका महंगी होने वाली है। इसलिए ये पूरे के पूरे जो वर्ग है, इसको ये प्रभावित करने वाला कानून है। ये कि जो बहुतायत जो वर्ग है, उनको आत्मनिर्भरता को खत्म करने वाला कानून है। तो भाई साहब जी, आगे 26 जनवरी भी आ रही है, जी तो उसके लेकर भी कई रणनीतियां किसानों ने अपनी जो बनाई हैं। उसके जो दौरा है ब्रिटेन के जो यहाँ पे पहुंच रहे थे सांसद, उनका भी रद्द हो गया है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो जरूर बताइए। देखिए, इन सारे जो बातों से नरेंद्र मोदी जी को, भारत की जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे पहले समझना चाहिए। आपके सवाल बातों का सवाल का जवाब दूं, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना अभी 2 दिन पहले अमेरिका में जो घटना घटी, उसको लोग वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहिए। क्या भारत में आज जो किसान आंदोलनकारी जो किसान है, जो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने आत्मनिर्भरता को बचाने के लिए आंदोलन करते हुए जो शहीद हो गए, क्या इसका जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि मेरे हठ धर्मिता की वजह से ये किसान शहीद हो गए, किसान मौत के मुंह में चले गए? रही बात 26 जनवरी की, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र है, और गणतंत्र हमारा ये कहता है, हमारा जो संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक है। तो जब आप प्रधानमंत्री, हमने आपको चुना है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो हम जब चुन सकते हैं आपको, तो हम किसानों को आप हमारे परेड कराने से, किसानों को उनका ट्रैक्टर परेड कराने से कैसे रोक सकते हैं? ये हमारा एक सवाल है। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस है, हम उस गणतंत्र दिवस में हम भी स्वतंत्र हैं। हम अपने किसानों को अपने ट्रैक्टर का परेड करने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी गणतंत्र में हमारा संविधान ने हमको बाधा नहीं दिया है। वो हमको अधिकार है कि हम अपने भारत के संविधान के परेड में हम शामिल हो सके, तो इसलिए हम वहां जाएंगे। हमारे जवान हैं, वो हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई है, हमारे घर किसानों के बेटे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो जिस तरह से परेड में अब तक वो करते आए हैं, वो किसानों के परेड में वो शामिल हो। हम उनके परेड में नहीं, वो हमारे परेड में शामिल हो, किसानों के परेड में शामिल हो। अगर वो नहीं जाने देंगे तो ये नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही होगी, ये लोकतंत्र नहीं होगा, वो नरेंद्र मोदी जी का हिटलर शाही होगा। वैसे तो जो पिछले जितने भी कानून मोदी सर लाए थे जी, वो सबको देखते हुए, क्या ये जो कानून अभी थोप रहा है, ये थोपा गया है, वो महंगा पड़ रहा है? उनको लगता है कि जो पब्लिक है वो जाग पड़ी, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि वो हिटलरबाजी अभी भी उनके मन में है। मन की बात बताते हैं कि सब मान जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं मान रहे। तो लगता है कि आपको इस तरह रवाना होते आप वहाँ तक जाएंगे और आसानी से ये हमारी बात जो हम रख पाएंगे वहाँ पे? हाँ, देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को एक विश्वास था, क्योंकि देश भ्रष्टाचार, महंगाई, जिस तरह से आतंकवाद, इस सारी चीजों को देश देख रहा था, उसकी जो कीमतें चुका रही थी, उनकी बातों से लोगों को एक विश्वास हुआ था। अच्छे दिन का जो सपना उन्होंने जो सपना बेचा है उन्होंने, तो अच्छे दिन का सपना जब बेचा तो लोगों को लग रहा था, एक विश्वास होगा कि अच्छे दिन हमारे लिए आएंगे, तब उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था। नोटबंदी जब हुई तो लगा कि यह नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलवामा की घटना ने इस बात को, झूठ है, ये साबित कर दिया। ये नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है, नकली नोट खत्म होने वाला नहीं है। ये हमारा जो 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 मजदूरों का, किसानों का जो आत्मनिर्भरता थी, उनकी जो कहीं छोटी मोटी जमा पूंजी थी, उसको खत्म करने वाला था। इसलिए लोगों का एक विश्वास उड़ चुकी है। ये नरेंद्र मोदी केवल एक, जो बोलते हैं लोग, फेंकू है, वो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो लोगों को जो बरगलाने में, झूठ बोलने में वो माहिर हैं। और जैसे कि हम लोगों ने हिटलर को बारे में भी जो पढ़ा, तो उनको भी अपनी मन की बात बोलने का बड़ा शौक था, वो अब किसी का सुनता नहीं था। तो ठीक उसी तरीके से हिटलर को की दिशा में, हिटलर को फॉलो करने वाला नरेंद्र मोदी है, और वो जनता की बात को सुनने के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि जिस तरह हिटलर अपने मन की जो किया है वो करता रहे, लेकिन हिटलर अपने मन के करने के चक्कर में वो खुद ही खत्म हुए, ये भी अपने आप को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सभी बॉर्डरों पे अब जो जनता इकट्ठी है, किसान आंदोलन में चल रहे हैं, लेकिन क्या देखने में मिल रहा है कि तोमर सर या मोदी सर अभी भी ये कह रहे हैं, अभी प्रचार हो रहा है कि इनको अभी समझ नहीं आ रहा
इसका बात उनको समझना चाहिए। हमको समझ पूरा पूरी आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अब तक हमें मार रहा था, हमको कुटाई कर रहे थे, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, इस तरह से वो अभी हम लोग को छल रहे थे। वो अब उनको लग रहा है कि इस छल से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं ये छलावा हमारे लिए कब्रगाह साबित होगा, तो हम इस कब्रगाह में अब जाने वाले नहीं हैं। तो अभी भी इनको ये लगता है कि हम किसानों को छल लेंगे, अपने फेरे में ले लेंगे, तो ये वो गलत फहमी में है। मेरे को तो लग रहा है कि पीएम सर अभी भी जो भाषण दिया जाएगा उसमें भी यही बोलेंगे कि जो हमने किया किसानों के हित में किया है, जितना भी कानून आए हित में लाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है मन की बात कहने का। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम तो ये कहते हैं वो 26 जनवरी बहुत दूर है अभी, अब वो यहीं आ जाए, ये पलवल के बॉर्डर में जहाँ पर जो धरना हो रही है, या सिंधु बॉर्डर में, या गाजीपुर बॉर्डर में, किसी एक बॉर्डर में चले जाए, उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ये जब रायसेन में मध्य प्रदेश को संबोधित कर सकते हैं, गुजरात में जाके संबोधित करते हैं, तो दिल्ली के अंदर अब तो ऐसा है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं है, यहाँ में तो अलग अलग प्रांत के किसान आ चुके हैं। अब अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अलग अलग राज्य के किसान यहीं पर बैठे हुए हैं, यहीं आकर तो बात करें। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਗੱਫੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੂਲੀਆਂ ਛਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਰਕ ਚੀਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਉਹ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਕੈਂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਫ੍ਰੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਣੇ 4-5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ, 4 ਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਬਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਏ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਬੈਡਰੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਰੇਲ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी, आप अभी लगा रहे हो ये टेंट, तो कितने दिन से आप यहाँ पे मोर्चे पे हाजिरी भर रहे हो? हम लोग तो 26 से ही हैं। 27 को धरना शुरू हुआ, 24 से हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथी हैं सब, पूरा आगरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब पूरे साथी हैं साथ आए। तो यहाँ पे रात को रहने की या किसी तरह की कोई परेशानी तो परेशानी जो झेलेंगे ही, किसान है। परेशानियों में तो जिसका जीवन ही परेशानी में है वो तो नहीं तो जैसे मौत के उसमें चला जाएगा। ये परेशानी तब भी कम है उस परेशानी से, नहीं आने वाली नस्लें ही चली जाएंगी, मोदी उन्हें ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। तो अगे हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? जी वो क्या तारीख को 16 को 15 को जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार उस फैसले को टालने की कोशिश कर रही है कि किसानों, लेकिन हम लोगों ने भी यही प्रण किया है कि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे, चाहे हमें कानून वापस नहीं तो हमारी भी घर वापसी नहीं। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲਵਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਡੁਡੇਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। सबसे पहले तो मैं वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू की फतेह कहना चाहना। अपने सरदार सुखबीर सिंह जी जो गलियार इतने आके रुके हुए हैं कई दिनों तो, उन्होंने दसिया कि अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने गवांढी सी, वो गवांढी होने के बावजूद भी अपनी राजनीति कारण अपनी उन्होंने कब्जे च आ रहे हैं। वो एक बार विज्ञान भवन की मीटिंग हुई सी, वो कह रहे सी कि अगर असी पब्लिक की या किसानों की गल्लां मान लीए तो सानू अंबानी अडानी नहीं रहने देंगे। मैं तो ये तक कह सकता हाँ कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा लेकर रख रखे मोदी का। जिस दिन ये एक्सेप्ट करेंगे किसानों की 3 मांगा, उस दिन उन्होंने रिजाइन दे के पब्लिक आ जाएगा। इस तरह लग रहा है कि दे आर नाउ बीइंग entrapped by Ambani Adani families and they are being monitored and taken away by Ambani Adani. So it's a very dangerous thing for the democracy. जिस तरह तुसी देखा होने कल परसों अमेरिका होया है, ट्रंप हारने के बावजूद भी वो छोड़ के राजी नहीं, उन्होंने तो इंपीचमेंट करना हो जा सकता है। इस तरह मोदी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जिस तरह वो देश के किसानों के नाल गलती नाल पेश आ रहे हैं, उन्होंने मांगों को पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने समझ नहीं रहे कि किसान ये रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान ये नहीं मिलेगा कुछ तो किस तरह रहेंगे। तो इस वास्ते मोदी साहब को भी थोड़ा अमरीका तो ट्रंप तो सबक लेना चाहिए है। जब तुसी पॉपुलर नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, जबरदस्ती क्यों तुसी अपना कब्जा करना चाहते हो? इस तरह नहीं करना चाहिए और जनहित को ना कुछ करना चाहिए। तो पता होना पहले अपना यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आना सी, उन्होंने भी अपनी कैंसल करती। तो मैंने लगता है इस वास्ते की कि उन्होंने भी प्रेशर होगा, क्योंकि इंडियन सिख भी पंजाबी उत्थे काफ़ी नंबर च कनाडा यूके
ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਤਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਪਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਾਡਾ ਓਪਨਲੀ ਆ ਰਹੇ, यूके भी इनडायरेक्ट इनकी सपोर्ट कर रही है कि सत्य उन्हें अपनी कैंसिल करती है वो यात्रा। मैं दोनों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ और अंबानी अडानी थोड़ा उन्होंने को बच के रहन, नहीं तो देश की हालत बड़ी खराब हो जाएगी। अगर किसान ही उन्हें अगेंस्ट हो गया तो आने वाले समय उन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान होएगा। जिस तरह कांग्रेस आज भुगत रही है उससे बीजेपी का यो हौल जाए कि अगे 20-25 साल तक इन्होंने मौका ही ना मिले। हुण इन्होंने मौका मिले तो सेवा करनी चाहिए सबनों। जब सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास लेके चलना है तो इस तरह होएगा, नहीं तो यो होएगा।